ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਯਰ YouTube ਚੈਨਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਫੈਮਿਲੀ 87। ਸੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੈਂਬਰਿਜ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਗ੍ਰਾਮਰ ਇਨ ਯੂਜ਼ ਬਾय ਰੈਮੰਡ ਮਰਫੀ। ਉਸ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 108। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸੁਪਰਲੇਟਿਵਸ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਆਪਣੀਆਂ ਯੂਨਿਟਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ 105, 6 ਤੇ 7, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੰਪੈरेटिव ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। और जी बेस डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री मैं तो समझाया सी जेडे अपने एडजैक्टिव्स होंदे ने उन्हां दियां 3 डिग्रीज होंदियां ने। बेस डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री दे विच आपां किसी एक चीज़ का किसी दूसरी चीज़ दे नाल कंपेयर करते हैं या फिर किसी एक इंसान का दूसरे इंसान नाल कंपेयर करते हैं। और सुपरलेटिव दे विच आपां किसी चीज़ नूं या फिर किसी इंसान नूं सब तो आपां मतलब कि महान आ जिहड़ा वो साबित करते हैं। सो देखो डिग्रीज ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿੰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਬ ਦੀ ਫਾਰਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਗਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣਾ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਹੈ ਹੈਪੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੰਪੈरेटिव ਡਿਗਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਹੈਪੀਅਰ, ਈਆਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਗਰੀ ਆ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੈਪੀਐਸਟ, ਈਐਸਟੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਈਐਸਟੀ, ਈਆਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਮੋਰ ਤੇ ਮੋਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯੂਜ਼। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੰਪੈरेटिव डिग्री ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਔਰ ਸੁਪਰਲੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟ ਬਿਊਟੀਫੁਲ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਸਮਝਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਪਿਛਲੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨਿਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਓਵਰਵਿਊ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਸੁਪਰਲੇਟਿਵਸ ਕਰਨੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਦ ਲੌਂਗੈਸਟ, ਦ ਮੋਸਟ ਇੰਜੋਏਬਲ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਗਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਐਡਜੈਕਟਿਵਸ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਵਰਬ ਦੀ ਫਾਰਮਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬੇਸ ਡਿਗਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਕੰਪੈरेटिव ਡਿਗਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਸ ਨਾਲ ਈਆਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰਲੇਟਿਵ ਡਿਗਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਈਐਸਟੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਆਪਣੇ ਐਡਜੈਕਟਿਵਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਈਆਰ ਤੇ ਈਐਸਟੀ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਊਟੀ ਆਪਾਂ ਫੇਮਸ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਿਊਟੀਫੁਲ, ਇੱਕੋ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ। ਫੇਮਸ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਫੇਮਸਰ, ਫੇਮਸੈਸਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਮੋਰ ਤੇ ਮੋਸਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫੇਮਸ ਕੰਪੈरेटिव ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰ ਫੇਮਸ ਔਰ ਸੁਪਰਲੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟ ਫੇਮਸ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਕੰਪੈरेटिव ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ THA ਦੈਨ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸੁਪਰਲੇਟਿਵ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਵੇਜ਼ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੁਪਰਲੇਟਿਵ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੋਸਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਈਐਸਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਹੈ ਵਰਬ ਦੀ ਫਾਰਮਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਰੈਗੂਲਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਡਿਗਰੀਜ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਐਡਜੈਕਟਿਵਸ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੋਂ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੱਡ ਹੈ, ਕੰਪੈरेटिव ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਬੈਟਰ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਸੁਪਰਲੇਟਿਵ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਬੈਸਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਲਵੇ ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਓਲਡ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਇਰੈਗੂਲਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਓਲਡ, ਓਲਡਰ, ਓਲਡੈਸਟ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਓਲਡ, ਇਲਡਰ, ਇਲਡੈਸਟ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਲਡਰ, ਇਲਡਰ, ਓਲਡੈਸਟ, ਇਲਡੈਸਟ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ, ਓਲਡ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਓਲਡ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਓਲਡ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਲਡਰ, ਇਲਡਰ, ਓਲਡੈਸਟ, ਇਲਡੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ, ਕਿਸੇ ਗਵਾਂਢੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਗਲੀ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਓਲਡ, ਓਲਡਰ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਓਲਡਰ, ਓਲਡੈਸਟ। ਬਟ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣਾ ਸਕਾ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਓਲਡ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ ਇਲਡਰ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ ਇਲਡੈਸਟ। ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਖਿਓ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮਾਈ ਇਲਡਰ ਬ੍ਰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਈ ਓਲਡਰ ਬ੍ਰਦਰ ਨਹੀਂ। ਓਲਡਰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਜੇਕਰ ਫੈਮਿਲੀ ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਲਡਰ ਤੇ ਇਲਡੈਸਟ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਚੁੱਕਿਆ। 5ਵੀਂ 6ਵੀਂ ਤੇ 7ਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ 105, 106, 107 ਨੰਬਰ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਸੁਪਰਲੇਟਿਵਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਵਾਲੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੰਪਲੀਟ ਦਾ ਸੈਂਟੈਂਸਸ। ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 2-2 ਸੈਂਟੈਂਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ,
पहले वाला इन्होंने पूरा कंप्लीट आप दिता बना के, और जो अगला है वो इनकंप्लीट है, इत्थे आप उसनूं कंप्लीट करना है। और कंप्लीट करना किस तरह है, यूज अ सुपरलेटिव, आपने सुपरलेटिव डिग्री का यूज करना है। जिस तरह मान लो लॉन्ग है तो आप लॉन्गेस्ट यूज करांगे, फेमस है तो आप मोस्ट फेमस यूज करांगे, ठीक है। गुड है तो आप बेस्ट यूज करांगे, ओल्ड है तो आप ओल्डेस्ट या इल्डेस्ट यूज करांगे। वो तुहानूं पता ही है, फैमिली दे विच आ गया तो इल्डेस्ट, बाकी ओल्डेस्ट, ठीक है। हुण आप सुपरलेटिव डिग्री है जी यूज करना है, इन्होंने दस्सिया भी है, देखो या तो EST लगता होंगे या फिर मोस्ट लगेगा, है ना। उस तो बाद प्लस, प्लस अपने की यूज करना है, अ प्रैपोजिशन। प्रैपोजिशन मतलब कि या तो ऑफ या इन। हुण आपने ये देखना है आप इन का यूज कदों करांगे और ऑफ का यूज कदों करांगे, ऑफ का यूज कदों करांगे, इन का यूज कदों करांगे। ये चीज़ तो इन्होंने दसती, आपने सुपरलेटिव का यूज करना है, ठीक है। उस तो बाद प्लस आपने प्रैपोजिशन का यूज करना है, ठीक है। हुण देखो सुपरलेटिव आपको पता, सुपरलेटिव आप इत्थे यूज करांगे, उस तो पहला द जिहड़ा उसका यूज कर लांगे, बस ओके हो गया। उस तो बाद आप उस दे नाल इन या फिर ऑफ का यूज करांगे। वो आप किस तरह करांगे, देखो 3 पॉइंट ने सिर्फ, बिल्कुल आसान है। आफ्टर सुपरलेटिव्स वी नॉर्मली यूज इन, सुपरलेटिव तो बाद आप नॉर्मली इन का यूज करते हैं, आप इन का यूज करते हैं विद प्लेसेस। हुण प्लेसेस की होंदियां ने, प्लेसेस तुहानूं पता है जगह, मतलब कि जिस तरह मान लो आप स्कूल की गल करते हैं तो स्कूल एक जगह है तो इन द स्कूल। मान लो आप किसी होटल की गल करते हैं तो होटल एक जगह है, इन द होटल। मान लो आप रेस्टोरेंट की गल करते हैं तो इन द रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट एक जगह है, जगह का नाम है, तो आप उत्थे इन का यूज करांगे। अगला पॉइंट, वी ऑल्सो यूज इन, असी इन का होर भी यूज कित्थे करते हैं, विद ऑर्गेनाइजेशंस। ऑर्गेनाइजेशन होंदी है संस्था, किसी संस्था का आप नाम लेने तो उत्थे भी आप इन का यूज करांगे। एंड ग्रुप्स ऑफ पीपल, अते लोकां दा जेकर एक ग्रुप की गल कर रहे हैं, आप लोकां दा एक ग्रुप है तो उत्थे भी आप इन का यूज करांगे। जिस तरह देखो अ क्लास, देखो एक क्लास होंदी है, रूम दे विच सारे बच्चे बैठे ने, क्लास वो की हो गया, ग्रुप ऑफ पीपल हो गया। उस दे विच जिन्ने उस ग्रुप दे विच लोग ने, मान लो जिन्ने स्टूडेंट ने, मान लो 30 ने 40 ने, वो एक ग्रुप हो गया, वो एक क्लास होगी। तो उत्थे आप इन क्लास कहांगे। आप अ कंपनी, जिस तरह कंपनी, कंपनी एक ऑर्गेनाइजेशन होगी, है ना, कंपनी दे विच अगे उस दियां जिहड़ियां ब्रांचेस ने वो आ गई, तो कंपनी दे नाल भी आप इन है जिहड़ा वो यूज करांगे। बिल्कुल सिंपल है। अगला थर्ड पॉइंट, ऑफ का यूज आप कदों करते हैं, फॉर अ पीरीयड ऑफ टाइम। जेकर आप टाइम समय की गल करनी हो, पीरीयड ऑफ टाइम, है ना, उत्थे आप भी नॉर्मली यूज ऑफ, उत्थे आप ऑफ का यूज करते हैं। आप मान लो किसी खास समय की गल कर रहे हैं तो उत्ते आप ऑफ का यूज करांगे। बाकी जो आप देखो इन्हों सॉल्व करांगे आराम नाल तुहानूं समझ आ जाएगी। जिस तरह देखो आप देखो स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करने तो पहला जिहड़ा आपने इनकंप्लीट है इनू कंप्लीट करना है, इसका स्ट्रक्चर है जिहड़ा ए वाला बनेगा। बिल्कुल सिंपल है। सब तो पहला सबजैक्ट का यूज करना है, फिर उस दे नाल हैल्पिंग वर्ब आएगी, उस तो बाद इन्होंने कहा आपां सुपरलेटिव यूज करना है, और सुपरलेटिव तो पहला आप द का यूज करांगे, फिर आप सुपरलेटिव यूज करांगे, उस तो बाद प्लस इन या फिर ऑफ, वो तुसीं इस दे मुताबिक करना है। जेकर किसी प्लेस की गल हो रही है या फिर ग्रुप ऑफ पीपल की गल हो रही है, फिर आप इन का यूज करांगे। जेकर समय की गल हो रही है टाइम की, फिर आप ऑफ का यूज करांगे। उस तो बाद प्लस ऑब्जैक्ट, और ऑब्जैक्ट इन्होंने सारिਆਂ ਦੇ पिछे आपां ऑलरेडी दिते हुए ने। बिल्कुल सिंपल है। देखो पहला स्टार्ट करते हैं, इन्होंने की कहा, इट्स, इट्स मतलब इट इज़ अ वेरी गुड रूम। सब तो पहला आप जो पहला इन्होंने कंप्लीट करके आपको दिता है, उस दे विच आपने देखना है कि एडजैक्टिव किहड़ा है, क्योंकि उस एडजैक्टिव नूं आपने अगे सुपरलेटिव करके लिखना है। ठीक है, इत्थे एडजैक्टिव किहड़ा है, इट इज़ अ वेरी गुड। देखो गुड, गुड रूम, ये पूरा चक्कांगे आप, गुड रूम। हर एक एडजैक्टिव दे नाल नाउन है जिहड़ा वो भी होएगा। आपने एडजैक्टिव प्लस नाउन वो दोनों चीज़ां चक के आपने अगे सुपरलेटिव बना देनियां ने। ठीक है, हुण इत्थे आ गया गुड रूम, गुड रूम वधिया रूम की गल हो रही है। हुण अगे आपां की गल करांगे, इट्स, इट इज़। देखो सब्जैक्ट आ गया, हैल्पिंग वर्ब आ गई, क्योंकि इट आ गया, इज़ आ गया। हुण आपां की यूज करना है, द, क्योंकि सुपरलेटिव यूज करना है गुड। गुड का सुपरलेटिव यूज हुंदा है बेस्ट, तो उस दे नाल द आ जाएगा। इट्स द बेस्ट, उस तो अगे रूम भी नाल, बेस्ट रूम। हुण अगे द होटल है, देखो पिछे ऑब्जैक्ट। हुण द होटल तो पहला ज्यादा आपां इन दा यूज करना या ऑफ दा। हुण द होटल, होटल की है, होटल एक जगह है, प्लेस है। देखो प्लेस है ना, स्कूल हो गया, होटल हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, एक जगह है, तो इस दिन आप इन दा यूज करांगे, तो इत्थे आ जाएगा
इन द होटल, तो बन जाएगा इट्स द बेस्ट रूम इन द होटल। सारे इस तरह बनाने, देखो बिल्कुल ईजी ने। सेकंड देखो, इट इज अ वेरी चीप रेस्टोरेंट। देखो इत्थे गल हो रही है चीप रेस्टोरेंट, चीप एडजेक्टिव आ गया, चीप हुंदा सस्ता, अगे रेस्टोरेंट नाउन आ गया। चीप रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट नूं कहा गया सस्ता, चीप की होंगे सस्ता। ये की कह रहा है, कहना इट इज़ अ वेरी चीप रेस्टोरेंट, ये रेस्टोरेंट बहुत सस्ता जहा रेस्टोरेंट है। अगे हम आप बनावांगे इट इज़ सबजैक्ट आ गया, हैल्पिंग वर्ब आ गया। अगे आप सुपरलेटिव डिग्री यूज करांगे चीप दी, चीप दी होंगे चीपेस्ट, उस तो पहला द चीपेस्ट रेस्टोरेंट भी नाल, द चीपेस्ट रेस्टोरेंट। हुण अगे आ गया द टाउन, भी यह टाउन का सब तो सस्ता रेस्टोरेंट है। हुण टाउन की है, एक जगह है, प्लेस है, भी इस जगह ते सब तो रेस्टोरेंट है, तो प्लेस के नाल आपां इन दा यूज करना है, इन द टाउन। बिल्कुल ईजी है, इट्स द चीपेस्ट रेस्टोरेंट इन द टाउन। सारे इस तरह बनाते जाओ, देखो बिल्कुल आसान ने। वीडियो को पॉज करके तुसी अगले अपने आप बना के देखो, उस तो बाद मैच करियो, ठीक है। आप थर्ड देखते हैं, इट वॉज अ वेरी हैप्पी डे। इत्थे गल हो रही है इट वॉज अ वेरी हैप्पी डे, ये आ गया एडजेक्टिव, ये आ गया नाउन नाल। हैप्पी डे मतलब वधिया दिन की गल हो रही है, कहना ये दिन बहुत वधिया सीगा। इट वॉज अ वेरी हैप्पी डे। अगे इट वॉज डैश, ठीक है, माई लाइफ। सब तो पहला तो इट आ गया, वॉज आ गया, सबजैक्ट आ गया, हैल्पिंग वर्ब आ गई। हुण आपां सुपरलेटिव करना, हैप्पी दा हैप्पीएस्ट, मूरे द लगावांगे अगे, द हैप्पीएस्ट नाल डे। हुण रह गया इन ते ऑफ, क्योंकि अगे ऑब्जेक्ट दिता पे। हुण माई लाइफ की है, देखो माई लाइफ जेकर ये कहने की कोशिश कर रहा है कि इट वॉज अ वेरी हैप्पी डे, ये बहुत वधिया दिन सीगा। इट वॉज द हैप्पीएस्ट डे माई लाइफ, मेरी जिंदगी का यह बहुत खुशियां भरिया दिन सीगा। देखो मेरी जिंदगी का हुण ना तो यह जगह की गल हो रही है प्लेस की, ना ग्रुप ऑफ पीपल की गल हो रही है, ना ऑर्गेनाइजेशन की। ये गल की हो रही है पीरीयड ऑफ टाइम, इस समय की गल हो रही है कि मेरी जिंदगी का यह बहुत वधिया दिन सी, ये जिहड़ा पीरीयड सीगा बहुत वधिया सीगा। तो पीरीयड ऑफ टाइम के नाल आपां ऑफ का यूज करते हैं, इसलिए इत्थे आएगा ऑफ माई लाइफ। अगला देखो फोर्थ, शी इज अ वेरी इंटैलीजेंट स्टूडेंट। देखो एडजेक्टिव आ गया, इंटैलीजेंट ए स्टूडेंट आ गया, ये आप चकांगे। अगे देखो शी इज इंटैलीजेंट का सुपरलेटिव मोस्ट इंटैलीजेंट, अगे आएगा द, शी इज द मोस्ट इंटैलीजेंट स्टूडेंट, स्टूडेंट नाल लगावांगे स्टूडेंट। हुण आपां इन ते ऑफ लगाउणा अगे। अगे है की है द क्लास, देखो द क्लास एक ग्रुप ऑफ पीपल हो गया है ना, तो इसलिए आपां इस दे नाल इन दा यूज करांगे, इन द क्लास, मतलब क्लास दे विच ओह मोस्ट इंटैलीजेंट है, सब तो ज़्यादा इंटैलीजेंट है। अगला फिफ्थ, इट इज़ अ वेरी वैल्यूएबल पेंटिंग। देखो एडजेक्टिव आ गया वैल्यूएबल, ठीक है। अगे पेंटिंग, पेंटिंग की गल हो रही है तस्वीर की, यह कहने बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल पेंटिंग है। अगे इट इज़ आ गया, अगे आप सुपरलेटिव यूज करांगे वैल्यूएबल। हुण वैल्यूएबल के नाल आपां वैल्यूएबलर नहीं कहांगे, आप कहांगे मोस्ट वैल्यूएबल, क्योंकि इस नाल मोर ते मोस्ट लगेगा और उस तो पहला द का यूज होएगा। इट्स द मोस्ट वैल्यूएबल, पेंटिंग भी नाल आएगा, पेंटिंग, मोस्ट वैल्यूएबल पेंटिंग। हुण अगे हैगा द गैलरी। हुण गैलरी की है भी इस गैलरी दे विच, गैलरी एक जगह है भी इस जगह दे विच जिन्नियां पेंटिंग्स लगियां हुई ने उन्हां दे विचों मोस्ट वैल्यूएबल पेंटिंग है। हुण गैलरी एक प्लेस है, जगह है, तां करके इत्थे आपां इन दा यूज करांगे, इन द गैलरी। इट्स द मोस्ट वैल्यूएबल पेंटिंग इन द गैलरी, इस गैलरी दे विच ये सब तो मोस्ट वैल्यूएबल है जिहड़ी ओह पेंटिंग है। छेवां देखो, स्प्रिंग इज़ अ वेरी बिजी टाइम फॉर मी। जिहड़ा स्प्रिंग है ना, वो मेरे लिए बहुत बिजी टाइम हुंदा है, ठीक है। स्प्रिंग एक रुत की गल आ गई, ठीक है, स्प्रिंग रुत आ गई। इट्स अ वेरी बिजी आ गया, देखो एडजेक्टिव बिजी टाइम आ गया, ठीक है। हुण अगे की कह रहा है, इट इज़ द ईयर। सब तो पहला इट इज़ सबजैक्ट हैल्पिंग वर्ब हो गया। आपां बिजी दा सुपरलेटिव हुंदा बिजीएस्ट, तां करके द बिजीएस्ट
टाइम, टाइम नाल आएगा इट्स द बिजीएस्ट टाइम। उस तो बाद आ गया द ईयर, हुण आपां इन या फिर ऑफ का यूज करांगे। देखो द ईयर भी इस साल का, ठीक है, इट्स द बिजीएस्ट टाइम द ईयर, इस साल का यह बहुत जिहड़ा स्प्रिंग सीजन है ये बहुत बिजी टाइम हुंदा है, मतलब कि ये पीरीयड ऑफ टाइम हो गया भी जिहड़ा ये समय साल का बहुत बिजी समा हुंदा है, पीरीयड ऑफ टाइम है, तो इस दे नाल आपां ऑफ है जिहड़ा उसका यूज करांगे। देखो मैनूं नहीं लगता कि इस दे विच कोई पजलिंग वाला काम है, जिन्ना मैं तुहानूं समझाया बिल्कुल ईजी है। सुपरलेटिव का ही यूज करना है, उस तो अगे सिर्फ तुसीं ने द का यूज करना है। सुपरलेटिव जिहड़े इधर दिते ने सेम वही चीज़, मतलब कि इधर सुपरलेटिव जिहड़े एडजैक्टिव है, सुपरलेटिव डिग्री है, उसके नाल ही जिहड़ा नाउन दिता है दोनों इकट्ठे चक के लिखने ने, उस तो पहलां तुसीं ने द का यूज करना है, उसनूं सुपरलेटिव बना देना। उस तो बाद इन अते ऑफ का यूज है, सिर्फ तीन गल्लां याद रखो। जे प्लेस की गल हो रही है, ग्रुप ऑफ पीपल की गल हो रही है, फिर तुसीं इन का यूज करो। जेकर समय की गल हो रही है, टाइम की, जिस तरह इत्थे माई लाइफ की गल हो रही थी, समय की गल हो रही थी, मेरी जिंदगी का जिहड़ा ये समय, इत्थे ईयर साल का जिहड़ा ये समय स्प्रिंग सीजन, तो समय की है, उत्थे आपां ऑफ का यूज करांगे। ठीक है, ये हो गए पहले 6। हुण अगले 7 तो 12 तक इन्होंने की कहा है, बिल्कुल सेम एज इट उस ही तरह, बिल्कुल ईजी है। देखो इस दे विच सिर्फ आपां ने एक चीज़ की करनी है, इन द फॉलोइंग सेंटेंस, जिहड़े अगले सेंटेंस ने यूज वन ऑफ, इहदे विच आपां वन ऑफ का यूज करना है। सब तो पहला आप वन ऑफ का यूज करांगे इस दे विच, उस तो बाद प्लस आपां सुपरलेटिव का यूज करांगे सेम उस तरह, और सुपरलेटिव तो पहला आप द का यूज करांगे, मतलब पहला वन ऑफ यूज करांगे, फिर प्लस सुपरलेटिव है, इस तो पहला द आएगा ही आएगा, उस तो बाद द का यूज करांगे, फिर सुपरलेटिव आ जाएगा, प्लस फिर प्रैपोजिशन सेम इन अते ऑफ उस तरह, इस रूल्स के मुताबिक। देखो पहला बनाना बिल्कुल ईजी है। पहले दे विच देखो की कह रहा है, कहते इट इज़ अ वेरी गुड रूम, यह रूम बहुत वधिया है, सेम फर्स्ट वाला है, इट इज़ अ वेरी गुड रूम, ये रूम बहुत वधिया है। देखो वेरी गुड रूम ये आ गया, आप ये चीज़ चकनी है, ठीक है, इसनूं सुपरलेटिव बनावांगे, गुड रूम नाल आएगा ही आएगा। उस तो पहला वन ऑफ द आप वन ऑफ द यूज करना है। देखो आप बनाने इट इज़ अ वेरी गुड रूम फुल स्टॉप, हुण आपां बनावांगे इट इज़, हुण इट इज़ तो बाद आप वन ऑफ लिखांगे, पहला इट इज़ वन ऑफ, हुण सुपरलेटिव बनावांगे गुड दा बेस्ट, तो उस तो पहला द बेस्ट, उस तो बाद रूम इस तरह आ जाएगा द बेस्ट रूम, उस तो बाद इन अते प्रैपोजिशन का यूज करना इन अते ऑफ चो। देखो द होटल है इत्थे, मतलब प्लेस का जगह का नाम है, तो आप इत्थे इन द यूज करांगे, ये बन जाएगा। पहला इन्होंने कहा सी इट इज़ अ वेरी गुड रूम, ये रूम बहुत वधिया है, उस तो बाद कहता इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट रूम इन होटल, भी इस होटल के जिन्ने भी रूम ने उन्होंने विचों ही सब तो ज़्यादा बेस्ट है, वन ऑफ वैसे लगाते जाना। अगला 8वां, ही इज़ अ वेरी रिच मैन, वो बहुत अमीर आदमी है, ठीक है, रिच ये हो गया एडजेक्टिव, रिच मैन, आप रिच मैन उत्थे लेके जाना, ठीक है, रिच नूं आपां सुपरलेटिव बना देना। अगे ही इज़ वन, इन्होंने वन पहले ही देता, बस ऑफ ला दो नाल, ही इज़ वन ऑफ, उस बाद रिच की सुपरलेटिव बनावांगे, उदों पहला द, ही इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट, रिचेस्ट EST लगू रिच नाल, उदों बाद मैन नाल लिखांगे रिचेस्ट मैन, उस तो बाद की है अपने लवे द कंट्री। हुण द कंट्री की है, कंट्री एक जगह का नाम है ना, प्लेस है, ठीक है, प्लेस जगह, एक टाइम की गल तो हो नहीं रही, कंट्री जगह, तां करके आपां इन दा यूज करांगे। ही इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इन द कंट्री, इस कंट्री के जिन्ने भी अपने रिच मैन ने अमीर, उन्हां दे विचों वन ऑफ द रिचेस्ट, उन्हां दे विचों एक आदमी है। 9वां, इट इज़ अ वेरी बिग कास्टल, देखो बिग एडजेक्टिव हो गया, कास्टल, कास्टल हुंदा किला, ये बहुत बड़ा किला है। अगे इट इज़ डैश, ठीक है, यूरोप, मतलब यूरोप के किले की गल हो रही है, आप सब तो पहले इट इज़ दे नाल वन ऑफ का यूज करांगे वन ऑफ, उस तो द भी आप लगावांगे क्योंकि सुपरलेटिव करांगे बिग द बिगेस्ट, ठीक है, बिगेस्ट, उस तो बाद कास्टल आएगा, बिगेस्ट कास्टल। हुण यूरोप, भी यूरोप का यह वन ऑफ द बिगेस्ट कास्टल है, भी यूरोप के जिन्ने बड़े किले ने उन्होंने दे विचों एक है, तो यूरोप एक जगह का नाम है, प्लेस है, तो इत्थे भी आपां इन दा यूज करांगे, इन यूरोप। 10वां, शी इज़ अ वेरी गुड प्लेयर, देखो गुड प्लेयर एडजेक्टिव, गुड प्लेयर। हुण अगे शी इज़, अगे वन ऑफ, बिल्कुल ईजी है, देखो शी इज़ वन ऑफ, अगे द गुड दी सुपरलेटिव बेस्ट, शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट
प्लेयर, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर। अगे है अपने लवे द टीम। टीम भी देखो एक की हो गई, एक ग्रुप ऑफ पीपल हो गया। टीम दे विच एक तो ज़्यादा प्लेयर होंगे ने ना, मान लो 10 प्लेयर होंगे ने, 12 जिन्ने भी गेम्स के अकॉर्डिंग, तो ग्रुप ऑफ पीपल हो गया। तां करके इत्थे भी आपां इन दा यूज़ करांगे। वेरी ईजी, शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन द टीम। अगे 11वां, इट वॉज, ठीक है, इट वॉज इत्थे इट्स नहीं आएगा, इट वॉज है आई थिंक, चलो तुसी करैक्ट कर लियो जे कोई गलती हुई। इट वॉज अ वेरी बैड एक्सपीरियंस, बैड एक्सपीरियंस ये आ गया अपने, बैड एडजेक्टिव आ गया, एक्सपीरियंस आ गया, नॉन आ गया। अगे इट वॉज वन ऑफ द बैड द एक्सपीरियंस, ठीक है। अगे आ गया अपने माई लाइफ, मेरी जिंदगी का यह वन ऑफ द, हुण मेरी जिंदगी का मतलब एक पीरीयड ऑफ टाइम आ गया भी जिहड़ा ये समय मेरी जिंदगी का, ये बुरे समय के एक समय, कोई प्लेस की गल नहीं, कोई ग्रुप ऑफ पीपल नहीं, समय की गल है भी मेरी जिंदगी का आ जिहड़ा समय, तां करके इत्थे आपां ऑफ द यूज़ है जिहड़ा वो करांगे। अगला, इट इज़ अ वेरी फेमस यूनिवर्सिटी, देखो फेमस यूनिवर्सिटी एडजेक्टिव आ गया, फेमस यूनिवर्सिटी। अगे इट इज़ वन ऑफ लिखांगे, इट इज़ वन ऑफ, अगे द यूज़ करांगे ही करांगे, द फेमस है, फेमस दी सुपरलेटिव मोस्ट फेमस, क्योंकि इस EST नहीं लगेगा, वन ऑफ द मोस्ट फेमस। अगे यूनिवर्सिटी, फेमस यूनिवर्सिटी। हुण अगे इन ते ऑफ दे विचों की है वर्ल्ड, वर्ल्ड दी एक जगह आ गई, वर्ल्ड भी इस जगह दी मोस्ट जिहड़ी फेमस यूनिवर्सिटी ने उन्हां दे विचों एक है, तो इत्थे भी आपां इन दा यूज़ करांगे, क्योंकि इत्थे कोई टाइम या समय की गल नहीं हो रही। देखो मैं दोबारा रिपीट करदा, सुपरलेटिव जिहड़ियां डिग्रीज़ ने तुहानूं पता होनी चाहिए ने, बेस डिग्री, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, ये तो ईजी है। इन्हां दे अगे मतलब पार्ट्स ने, मतलब कई प्रकार दियां हुंदियां ने, एक तो EST लग जाता है, एक दे नाल तां ER ते EST, एक दे नाल मोर ते मोस्ट लग जाता है, एक तीनों ही डिग्रियां दे विच चेंज हुंदियां ने। बस आ ओल्ड वाली, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, इन्हां दा बस इल्डर ते ओल्ड दे विच तुहानूं पता होना चाहिए। और अगे इन ते ऑफ तुहानूं मैं दस दिता, 3 रूल ने। उस तो बाद तुहाडे सामने किस तरह बनाउणा है, इधरों देखो एडजैक्टिव ते नॉन उही चुकने ने, उन्हां तो अगे बस तुसीं ने द यूज़ करी जाना, बिल्कुल सिंपल है। एंड इस तो अगे अपनी इस यूनिट का सैकेंड पार्ट है जिहड़ा वो आपां करदे हां। देखो इस दे विच आपां ने की करना है, कंप्लीट द सेंटेंसेस, जेडे सेंटेंसेस ने देखो इनकंप्लीट ने, ब्लैंक्स छड्डे हुए ने, इन्हों आपने कंप्लीट करना है। और कंप्लीट किस तरह करना है, यूज अ सुपरलेटिव, या तो कहते सुपरलेटिव यूज करो, सुपरलेटिव या तो EST लगेगा या मोस्ट लगेगा, या फिर और अ कंपैरेटिव, या फिर कंपैरेटिव यूज करो, मतलब कि उस दे नाल या तो ER लगेगा या मोर लगेगा। हुण करना किस तरह, देखो जिन्ने भी सेंटेंसेस ने, हर एक सेंटेंस के एंड ते आपां नूं इन्हां ने एडजैक्टिव ने जिहड़े ओह दिते हुए ने। हुण आपां ने देखना यह है कि जदों आपां इन्हां एडजैक्टिव्स नूं इत्थों ब्रैकेट दे विचों खोल के इत्थे आपां ब्लैंक दे विच लैके आवांगे, तां आपां उस नूं किस तरह यूज़ करना है, सुपरलेटिव के तौर पर यूज़ करना है या फिर कंपैरेटिव फॉर्म के तौर पर यूज़ करना है। जेकर सुपरलेटिव के तौर पर यूज़ करना है तो इन्हां दा आपां सुपरलेटिव बना के उस तो अगे द यूज़ आपां ने करना ही करना है। और जेकर आपां नूं लगदा है कि किसी सेंटेंस दे विच किसी एक चीज़ का या फिर किसी एक व्यक्ति का किसी दूसरी चीज़ नाल या फिर किसी दूसरे व्यक्ति दे नाल कंपेयर हो रहा आपस दे विच, फिर आपां ने कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करनी है। जिस तरह चीप है, जेकर आपां नूं लगदा इत्थे सुपरलेटिव आएगी आपां द चीपेस्ट लिख दांगे, जेकर आपां नूं लगदा कंपैरेटिव आएगी फिर आपां चीपर लिख दांगे, ER है जिहड़ा वो आपां उत्थे लगा देवांगे। बिल्कुल ईजी है, सेंटेंस पढ़ के आपां नूं अपने आप पता चलेगा कि इत्थे कंपेयर हो रहा किसी नाल या फिर मतलब कि सुपरलेटिव यूज़ हो रहा। देखो जिवें फस्ट देखो, वी स्टेड एट, है ना, सब तो पहले तुसीं इत्थे एवें ही ला दो इसनूं, वी स्टेड एट, इत्थे मान लो आपां चीप इस तरह लिखदा सॉरी, वी स्टेड एट चीप होटल इन द टाउन।
इस टाउन दे हुण देखो किसी नाल कंपेयर नहीं हो रहा, सिर्फ उसे होटल की गल हो रही है कि असी वी स्टेड एट चीप होटल इन द टाउन, भी इस टाउन दे असी सब तो सस्ते होटल दे विच ठहरे हुए हैं, तां करके इत्थे आपां चीपैसट और अगे द यूज़ हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ईजी है, देखो किसी नाल कंपेयर नहीं हैगा सीगा। बट अगला देखो, और होटल वॉज, जिहड़ा साडा होटल सीगा इत्थे भी चीप है तो इत्थे भी आपां चीप लिखांगे, और होटल वॉज चीप देन ऑल अदर होटल्स इन द टाउन, भी इस टाउन दे विच जिहड़े ऑल अदर जिहड़े दूसरे होटल सीगे इस साडे टाउन दे विच उन्हां दे नालों साडा जिहड़ा होटल है वो की सीगा, चीप सीगा, सस्ता सीगा, तां करके कंपेयर हो रहा है, इसलिए इत्थे आपां चीपर ER दा जिहड़ा वो यूज़ आपां करांगे। थर्ड देखो, द यूनाइटेड स्टेट्स इज़ वेरी लार्ज, जिहड़ा यूनाइटेड स्टेट्स है वो बहुत ज़्यादा लार्ज है, बट परंतु कैनेडा इज़ इत्थे हैगा लार्ज। हुण देखो इत्थे की हो रहा है, कहंदे यूनाइटेड स्टेट्स बहुत ज़्यादा वड्डा है, बट कैनेडा इज़ लार्ज, परंतु कैनेडा मतलब कि यह कंपेयर हो रहा इत्थे। हुण जां तां आपां सुपरलेटिव करांगे या फिर कंपैरेटिव। हुण जेकर आपां सुपरलेटिव करदे हां तां आ जाएगा यूनाइटेड स्टेट्स इज़ वेरी लार्ज बट कैनेडा इज़ द लार्जेस्ट, नहीं, क्योंकि इत्थे आपां कैनेडा दा यूनाइटेड स्टेट्स दे नाल कंपेयर हो रहा, तां करके इत्थे लार्जर आएगा, ER आएगा इत्थे लार्जर, पर कैनेडा जिहड़ा वो लार्जर है, मतलब कि यूनाइटेड स्टेट्स दे नालों वड्डा हैगा। चौथा, आई होप कि तुहानूं समझ आ रही है, बिल्कुल ईजी है। फोर्थ, वट इज कंट्री इन द वर्ल्ड, मतलब कि स्मॉल है इत्थे, है ना। हुण की कहने की कोशिश कर रहे हैं, कहना वट इज स्मॉल कंट्री इन द वर्ल्ड, संसार दे विच सब तो छोटी कंट्री किहड़ी है, कंपेयर नहीं किसी नाल हो रहा, सब तो छोटी दी गल हो रही है, तां करके इत्थे आपां स्मॉलेस्ट, वट इज द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। अगला देखो पंजवां, आई वॉज नॉट फीलिंग वेल यस्टरडे, ध्यान दिओ, ये कह रहा है कल मैं वधिया फील नहीं कर रहा सी, कल, ठीक है, कल मैं वधिया फील नहीं कर रहा सी, बट आई फील अ बिट टुडे, मतलब कि गुड, इत्थे है ना गुड, कहना कल मैं वधिया फील नहीं कर रहा सी बट आई फील अ बिट गुड टुडे, पर अज मैं वधिया फील कर रहा। देखो अज नूं टुडे नूं कल दे नाल कंपेयर किया गया, तां करके इत्थे आपां गुड दा बैटर करांगे। आई होप कि तुहानूं समझ आ गई किस तरह। कल कहना मैं वधिया फील नहीं कर रहा सी बट अज मैं वधिया फील कर रहा, मतलब कल दे नाल कंपेयर हो रहा अज दा। छेवां, इट वॉज एन ऑफुल डे, ऑफुल डे हुंदा मतलब कि वधिया ना होना, ऑफुल हुंदा खराब घटिया, है ना। इट वॉज एन ऑफुल डे, जिहड़ा यह दिन सीगा कहंदा बहुत घटिया सीगा। इट वॉज डैश आ गया, है ना, बैड, इट वॉज बैड डे ऑफ माई लाइफ, मेरी जिंदगी का यह मतलब बुरा दिन सीगा। देखो जेड़े दिन की इत्थे गल हो रही है, इट वॉज एन ऑफुल डे, ये दिन बहुत खराब सीगा। इट वॉज बैड डे ऑफ माई लाइफ, ये दिन मेरी जिंदगी का सब तो खराब सीगा, मतलब इत्थे भी इसे दिन की गल हो रही है, किसी होर दिन नाल कंपेयर नहीं हो रहा। ਜਿਹੜੇ दिन की इत्थे गल हो रही है कि यह दिन खराब सीगा, अगे इसे दिन बारे ये गल कही गई है कि मेरी जिंदगी का यह सब तो ज़्यादा खराब दिन सीगा, किसी होर दिन दे नाल कोई कंपेयर नहीं है, तां करके इत्थे आपां द बैड की जिहड़ी अपनी सुपरलेटिव डिग्री है वर्स्ट, इट वॉज द वर्स्ट डे ऑफ माई लाइफ। सतवां, वट इज अगे आ गया डैश, ठीक है, पॉपुलर, वट इज इत्थे पॉपुलर या आप इस तरह करते हैं, वट इज पॉपुलर स्पोर्ट इन योर कंट्री, किसी ना कोई कंपेयर नहीं है। जेकर देखिए पंजाबी बनाइए सिर्फ इन्ना कहा जा रहा है, मतलब कि इन्ना कहने की कोशिश हो रही है कि वट इज पॉपुलर स्पोर्ट इन योर कंट्री, स्पोर्ट होंगे गेम, कि तुहाडी कंट्री दे विच सब तो पॉपुलर है जिहड़ी ओह किहड़ी स्पोर्ट है, किहड़ी गेम है, मतलब कि सुपरलेटिव है, सब तो पॉपुलर किहड़ी है, तां करके आपां कहांगे द पॉपुलर दे नाल आपां मोस्ट लगावांगे, पॉपुलरस्ट नहीं होगा, द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट इन योर कंट्री। आई होप कि तुहानूं समझ आ रहा है, मैं यही मतलब कि उम्मीद करदा। अठवां देखो, एवरेस्ट इज, एवरेस्ट मतलब कि माउंट एवरेस्ट, है ना, एवरेस्ट इज डैश माउंटेन इन द वर्ल्ड, मतलब कि इत्थे ये दो ब्लैंक्स ने, इस दे एंड ते सिर्फ एक दिता गया हाई, इत्थे मान लो हाई आएगा, हाई तो आएगा ही आएगा ना, अगे देखांगे हाईयर आएगा या हाईएस्ट। हुण जेकर आपां इस दे विच देखिए एवरेस्ट इज हाई माउंटेन इन द वर्ल्ड,
बिल्कुल ऑबवियस है, आपां नूं बिल्कुल साफ पता चल रहा है कि इत्थे ये गल कही जा रही है कि जिहड़ी एवरेस्ट है वो वर्ल्ड की सब तो हाईएस्ट माउंटेन है, तो इत्थे हाईएस्ट आएगा, अगे आपां द दा यूज़ करांगे। बट अगला सेंटेंस है जिहड़ा उस दे विच की कहा गया है, इट इज़ डैश, मतलब इत्थे भी आएगा तो हाई। अगे देखो, इट इज़ हाई दैन एनी अदर माउंटेन, मतलब कि यह उच्ची है, दैन आ गया पहले, तो इस तो पता लगता है कंपैरेटिव है। एनी अदर माउंटेन, होर जिहड़ी चोटियां ने उन्हां दे नालों यह उच्ची है, मतलब कि इत्थे कंपैरिजन हो रहा है, इत्थे आएगा हायर। अगला 9वां, दिस बिल्डिंग इज ओवर 250 मीटरस हाई, जिहड़ी ये बिल्डिंग है ये 250 मीटर हाई है, ठीक है। बट इट इज़, इत्थे इसे बिल्डिंग की गल हो रही है, बट इट इज़ नॉट द सिटी, मतलब कि टॉल है ना, टॉल मतलब कि लंबी। हुण की कह रहा है, कहना जी ये बिल्डिंग है 250 मीटर हाई है, बट इट इज़ नॉट टॉल इन द सिटी, मतलब कि कंपैरिजन किसे नाल नहीं हो रहा। साफ गल ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जिहड़ी बिल्डिंग है 250 मीटर उच्ची है, परंतु फिर भी, बट इट इज़ नॉट, परंतु फिर भी यह जिहड़ी सिटी है उसकी टॉलेस्ट, सब तो लंबी, सब तो उच्ची जिहड़ी बिल्डिंग है ये नहीं हैगी, मतलब कि इत्थे टॉलेस्ट आएगा। अगे आपां द लगावांगे, सुपरलेटिव है, ठीक है। अगला 10वां, आई प्रीफर दिस चेयर, कहना मैं इस चेयर नूं, कोई चेयर उसने मतलब हथ लगाया देखी, कहना मैं प्रीफर करदा इस चेयर नूं टू द अदर वन, होर दे नालों, टू द अदर वन, होर नालों मैं ये चेयर प्रीफर करदा क्योंकि इट इज़ कंफर्टेबल, इत्थे कंफर्टेबल आएगा, ठीक है। इट इज़ कंफर्टेबल, इट इज़ कंफर्टेबल। हुण आपां की कहांगे, सुपरलेटिव या किस तरह। हुण आपां जेकर सुपरलेटिव लावांगे आपां कहांगे क्योंकि ये सब तो ज़्यादा कंफर्टेबल है, सब तो ज़्यादा नहीं, आपां कंपेयर कर रहे हैं। दैन देखो, आई प्रीफर दिस चेयर टू द अदर वन, होर नालों ये चेयर ज़्यादा कंफर्टेबल है, तो इत्थे कंपेयर हो रहा है, मोर आएगा। देखो मैं बार बार यही उम्मीद कर रहा कि तुहानूं पता चल रहा है किस तरह कंपैरेटिव यूज़ हो रही है, किस तरह सुपरलेटिव। 11वां, वट इज़ डैश है ना, वट इज़ वे टू गेट टू द स्टेशन, मतलब कि क्विक, इत्थे आएगा क्विक, क्विक आ गया। हुणे की कह रहा है, कहना वट इज़ क्विक वे टू गेट टू द स्टेशन, स्टेशन जाण लई सब तो क्विक, सब तो तेज़ जिहड़ा रस्ता वो किहड़ा है। कंपेयर किसी नाल नहीं हो रहा, सब तो तेज़ पुछ रहा। आपां जदों कोई यही जी गल पुछदे आ, मैं स्टेशन जाना है, मैनूं सब तो जिहड़ा तेज़ रस्ता, जिहड़ा सब तो पहला जिहदे थ्रू मैं पहुँच सकां, मैनूं वो रस्ता दसो, है ना। तां करके इत्थे सुपरलेटिव यूज़ हो रहा है, क्विकेस्ट यूज़ हो रहा है। बट अगले दे विच देखो, विच इज़ इत्थे भी क्विक है, फर्क देखो, इत्थे भी क्विक है। कहना विच इज़ क्विक, कहना किहड़ा ज़्यादा तेज़ है, द बस और द ट्रेन, ठीक है। द बस और ट्रेन, हुण दोनों का आपस में कंपेयर हो रहा है। इत्थे पुछ रहा कि जिहड़े साधन ने बस ते ट्रेन, दोनों विचों किहड़ा ज़्यादा क्विक है, किहड़ा ज़्यादा तेज़ है, तां करके इत्थे क्विकर ER आएगा, कंपेयर हो रहा है दोनों का आपस दे विच। 13वां, वट इज़ थिंग यू हैव एवर बाउट, मतलब कि एक्सपेंसिव है ना। सब तो पहला ये लिखो, एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव होंदा महंगी, तो कहने की कोशिश की कर रहा है, वट इज़ एक्सपेंसिव थिंग यू हैव एवर बाउट, भी किहड़ी वो चीज़ है सब तो ज़्यादा महंगी जिहड़ी तुसीं ने हुण तक खरीदी है। कंपेयर किसी नाल नहीं, सिर्फ अपने तो पुछ रहा कि हुण तक जिन्नियां तुसीं ने चीज़ां खरीदियां ने उन्हां दे विचों सब तो ज़्यादा महंगी चीज़ जिहड़ी तुसीं ने किहड़ी खरीदी है। तो इत्थे आपां सुपरलेटिव पुछण की कोशिश कर रहे हैं कि सब तो महंगी किहड़ी खरीदी है, तां करके द मोस्ट एक्सपेंसिव आपां इत्थे करांगे। 14वां देखो, सुई एंड कैविन हैव गॉट 3 डॉटर्स, जिहड़े सुई ते कैविन ने उन्हां दे 3 बेटियां ने, इत्थे फुल स्टॉप आ गया, उन्हां दे 3 बेटियां ने। ओके, अगला शुरू तो ही अपने लवे डैश आ गई। अगे की है, इज़ 14 ईयरस ओल्ड, और अपने लवे ब्रैकेट दे विच हैगा है ओल्ड। हुण मान लो ये कहने की कोशिश ये कर रहा है कि सुई ते कैविन ने जिहड़े उन्हां दे 3 बेटियां ने, ठीक है। ओल्ड इज़ 14 ईयरस ओल्ड, ओल्ड इज़ 14 ईयरस ओल्ड, मतलब कि भी जिहड़ी उन्हां दी सब तो वड्डी बेटी है, ओल्ड जिहड़ी सब तो वड्डी बेटी है वह 14 साल की है। मतलब कि इत्थे सब तो वड्डी बेटी की गल हो रही है, किसी का कंपेयर नहीं हो रहा, सिर्फ ये दस्सिया जा रहा है कि उन्होंने 3 बेटियां ने,
ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਲਡ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ ਉਹ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਛੋਟੀ 11 ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਦੋਂ ਛੋਟੀ 9 ਦੀ, 8 ਦੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਸੁਪਰਲੇਟਿਵ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦ ਓਲਡੈਸਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਲਡੈਸਟ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਓਲਡੈਸਟ ਤੇ ਇਲਡੈਸਟ ਕੋਈ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਲਡੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਓਲਡੈਸਟ ਸਿਰਫ ਕਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨੰਬਰ 2, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵ ਅਤੇ ਸੁਪਰਲੇਟਿਵ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦੂਸਰੀ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵ ਫਾਰਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸੁਪਰਲੇਟਿਵ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਇਸ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਆਪਣੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨੰਬਰ 2। ਐਂਡ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਹੁਣ ਇਸ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਲਾਸਟ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਈਜ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, what do you say in these situations, ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਚੇ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਡਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਨੀਚੇ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਹੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਯੂਜ਼ ਅ ਸੁਪਰਲੇਟਿਵ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰਲੇਟਿਵ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਲੱਸ ਐਵਰ, ਔਰ ਪਲੱਸ ਆਪਾਂ ਨੇ ਐਵਰ ਦਾ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਐਵਰ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯੂਜ਼ ਦ ਵਰਡਸ ਇਨ ਬ੍ਰੈਕਟਸ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਫਾਰਮ, ਕਰੈਕਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੈਂਟੈਂਸਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉੱਪਰ, ਔਰ ਨੀਚੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਂਕਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਲਿਖਣੇ ਨੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ 3 ਦੈਟਸ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੈਟਸ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਸ ਤੋਂ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀ, ਦੈਟ, ਇਟ, ਹੂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇਤੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਟਰਕਚਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਾਈ ਜਾਓ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਜਾਣਗੇ। ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਹਰ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 7 ਨੇ, 7 ਦੇ ਲਈ ਇਹੀ ਚੱਲੇਗਾ, ਆਹ ਸਟਰਕਚਰ ਚੱਲੇਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਈਜ਼ੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਬਜੈਕਟ ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਲੱਸ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਇਸ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ ਹੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ 'ਚ ਤਾਂ ਦੈਟਸ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੈਟ ਇਜ਼, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਹੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਦਿਸ, ਦਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਇਜ਼ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਹੀ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਇਜ਼ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰਲੇਟਿਵ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਸੁਪਰਲੇਟਿਵ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੂਹਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਰਿੰਗ ਮੂਵੀ ਸੀ, ਅਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਫਨੀ ਜੋਕ ਹੀਅਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਵਰਬ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਵਰਬ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਜੋਕ ਇੱਕ ਨਾਉਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮੂਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫਨੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੋਰਿੰਗ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੱਡ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਨਾਉਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਵਰਬ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਐਡਜੈਕਟਿਵ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਉਨ, ਫਿਰ ਵਰਬ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਇੱਥੇ ਸੁਪਰਲੇਟਿਵ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਖ ਦੇਣਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੱਡ ਦਾ ਬੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸੁਪਰਲੇਟਿਵ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਇਜ਼, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਜ਼ੀ ਆਏਗੀ ਲਗਭਗ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਲੱਸ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰਲੇਟਿਵ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੂਹਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਐਡਜੈਕਟਿਵਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਪਲੱਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਉਨ, ਨਾਉਨ ਕਿਹੜਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੱਡ ਹੈ, ਗੁੱਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਸਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਦ ਬੈਸਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਹੈ ਨਾ, ਦ ਬੈਸਟ ਕਾਫੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਉਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ ਨਾਉਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਲੱਸ ਆਈ ਹੈਵ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਆਈ ਹੈਵ, ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੈਵ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਪਲੱਸ ਵਰਬ ਦੀ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਕਿਹੜੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਰਬ ਦੀ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਫਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਈਜ਼ੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਟਰਕਚਰ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਪਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਯੂ ਹੈਵ ਜਸਟ ਬੀਨ ਟੂ ਦ ਸਿਨੇਮਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਸਿਨੇਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਨੇਮੇ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਦ ਮੂਵੀ ਵਾਜ਼
ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਲੀ ਬੋਰਿੰਗ, ਜਿਹੜੀ ਮੂਵੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਰਿੰਗ ਸੀਗੀ, ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੂਵੀ। ਯੂ ਟੈਲ ਯੋਰ ਫਰੈਂਡ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੋਰਿੰਗ ਮੂਵੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਦੈਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੈਟਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੈਟ ਵਾਜ਼, ਮਤਲਬ ਪਾਸਟ 'ਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਨਿੰਗ ਆ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਕੋਮਾ ਲਾ ਕੇ ਐਸ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਾਸਟ 'ਚ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੈਟਸ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਬਜੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੁਪਰਲੇਟਿਵ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸੁਪਰਲੇਟਿਵ ਆਪਾਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬੋਰਿੰਗ, ਬੋਰਿੰਗ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੁਪਰਲੇਟਿਵ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਬੋਰਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ EST ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਮੋਸਟ ਲੱਗੇਗਾ, ਮੋਸਟ ਬੋਰਿੰਗ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੈਟਸ ਦ ਮੋਸਟ ਬੋਰਿੰਗ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸਮਝ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾउन ਕਿਹੜਾ, ਇਹ ਮੂਵੀ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ, ਮੋਸਟ ਬੋਰਿੰਗ ਮੂਵੀ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈਵ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਲੱਸ ਐਵਰ, ਸੌਰੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਪਲੱਸ ਆਈ ਹੈਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਲੱਸ ਐਵਰ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਫੇਰ ਪਲੱਸ ਵਰਬ ਦੀ ਥਰਡ ਫਾਰਮ। ਸਾਰੇ ਦੁਬਾਰੇ ਗੌਰ ਕਰਿਓ, ਐਵਰ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫੇਰ ਪਲੱਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਬ ਦੀ ਥਰਡ ਫਾਰਮ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈਵ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਵਰ, ਆਈ ਹੈਵ ਐਵਰ। ਹੁਣ ਵਰਬ ਦੀ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਸੀ ਸੌ ਸੀਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ। ਅਗਲਾ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਸੈਕਿੰਡ, ਯੋਰ ਫਰੈਂਡ ਹੈਜ਼ ਜਸਟ ਟੋਲਡ ਯੂ ਅ ਜੋਕ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁਣਾਇਆ, ਵਿਚ ਯੂ ਥਿੰਕ ਅ ਵੈਰੀ ਫਨੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਨੀ ਹੈ। ਯੂ ਸੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਫਨੀ ਜੋਕ ਹੀਅਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੈਟਸ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਬਜੈਕਟ ਤੇ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ। ਹੁਣ ਸੁਪਰਲੇਟਿਵ ਫਨੀ ਦਾ ਫਨੀਐਸਟ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦ ਫਨੀਐਸਟ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾउन ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋਕ ਆ ਗਿਆ, ਦ ਫਨੀਐਸਟ ਜੋਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾउन आ गया। फिर आई हैव, फिर एवर, हुण वर्ब की है हियर, द थर्ड फॉर्म हियर्ड, ये देखो ये कंप्लीट हो गया। दैट्स द फनीएस्ट जोक आई हैव एवर सीन, मतलब कि सॉरी हियर्ड, मतलब कि फनीएस्ट जोक सीगा है कि हुण तक जिन्ने मैं जोक सुने ने, है ना, उन्हां दे विचों। थर्ड, यू आर ड्रिंकिंग कॉफी विद अ फ्रेंड, तुसीं एक फ्रेंड दे नाल कॉफी पी रहे हो। इट्स रियली गुड कॉफी, बहुत वधिया कॉफी है। यू से, हुण तुसीं कहने हो की कहने आ, गुड कॉफी टेस्ट। दिस आ गया, दिस इज, ठीक है, दिस इज सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब। फिर सुपरलेटिव गुड दा बेस्ट, द लावांगे अगे, द बेस्ट। नाउन आ गया कॉफी, द बेस्ट कॉफी। उस तो बाद आई हैव, द बेस्ट कॉफी आई हैव। फिर उस तो बाद एवर, आई हैव एवर। टेस्ट दी थर्ड फॉर्म टेस्टड, एवर टेस्टड, ये अपना आंसर आ गया, ठीक है। फोर्थ, यू आर टॉकिंग टू अ फ्रेंड, तुसी एक दोस्त नूं मतलब गल कर रहे हो एक दोस्त दे नाल अबाउट सारा, सारा दे बारे। सारा इज वेरी जनरस, जिहड़ी सारा बहुत ज़्यादा जनरस है, दयालु है बहुत ज़्यादा। यू टेल योर फ्रेंड अबाउट हर, तुसी अपने हुण दोस्त नूं उस बारे दस रहे हो, सारा दे बारे। की दस रहे हैं, जनरस पर्सन मीट, तो शी, इस तरह शीज, ठीक है। शीज तो बाद आप सुपरलेटिव यूज करांगे, शीज जनरस। हुण जनरस है, इहदा EST नहीं लगेगा, मोस्ट जनरस आऊगा। उस तो पहला द, शीज द मोस्ट जनरस। नाउन आ गया पर्सन, मोस्ट जनरस पर्सन। फिर आई हैव एवर, आई हैव एवर मीट दी थर्ड फॉर्म मैट। देखो मैनू नहीं लगता कि बहुते ज़्यादा औखे ने, बिल्कुल आसान है, स्ट्रक्चर याद रखियो, ठीक है। इत्थे आपां एवर भुल गए सीगे क्योंकि एवर इन्होंने कहा यूज़ करना है, ठीक है। उस तो बाद थर्ड फॉर्म, ये स्ट्रक्चर के मुताबिक सारे बनाई चलो। आई होप कि तुहानू समझ आनी शुरू होगी। वीडियो पॉज करके ये तीनों अपने आप बना के देखो, उस तो बाद मैच करियो। देखो आप बनाने पंजवा, यू हैव जस्ट रन 10 किलोमीटर, तुसी मतलब 10 किलोमीटर भज चुके होने होने। यू हैव नैवर रन फारदर दैन दिस, तुसी इस तो ज़्यादा कदे नहीं भजे। यू से टू योर फ्रेंड, हुण अपने दोस्त नूं तुसी दस दिओ, की दस दिओ, फॉर रन, ठीक है। दैट, सब तो पहला दैट्स कर देंगे। उस तो सुपरलेटिव फॉर, FAR फॉर, इसका सुपरलेटिव हुंदा है, पहला द तल लगावांगे, द
farthest, the farthest ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ farthest, ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾउन। ਹੁਣ ਨਾउन ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਿੱਧੀ ਵਰਬ ਆ ਗਈ, ਅੱਗੇ ਨਾउन ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਨਾउन ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਸਿੱਧਾ ਅੱਗੇ ਆਈ ਹੈਵ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਨਾउन ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ, ਆਈ ਹੈਵ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਵਰ, ਆਈ ਹੈਵ ਐਵਰ ਰਨ ਦੀ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਨ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ। ਦੈਟਸ ਦ ਫਰਦਰ ਆਈ ਹੈਵ ਐਵਰ ਰਨ, ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਜਿੰਨਾ ਭੱਜੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੱਜਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੱਜਿਆ ਮੈਂ। ਛੇਵਾਂ, ਯੂ ਡਿਸਾਈਡਡ ਟੂ ਗਿਵ ਅਪ ਯੋਰ ਜੋਬ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੋਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਿਵ ਅਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਾਓ ਯੂ ਥਿੰਕ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਅ ਬੈਡ ਮਿਸਟੇਕ, ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੈਡ ਮਿਸਟੇਕ ਸੀਗੀ। ਯੂ ਸੇ ਟੂ ਯੋਰ ਫਰੈਂਡ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬੈਡ ਮਿਸਟੇਕ ਮੇਕ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੁਰੀ ਮਿਸਟੇਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਮਿਸਟੇਕ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਟਸ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਇਟ ਵਾਜ਼ ਵੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਆਪਾਂ ਪਾਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਜ਼ ਹੀ ਆਊਗਾ ਹਰ ਵਾਰ। ਸਬਜੈਕਟ ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਪਾਸਟ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪਾਸਟ ਇੱਥੇ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਇਟਸ ਆ ਗਿਆ ਸਿਰਫ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰਲੇਟਿਵ, ਬੈਡ ਦਾ ਸੁਪਰਲੇਟਿਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਦ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦ ਵਰਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾउन ਕੀ ਹੈ, ਮਿਸਟੇਕ, ਦ ਵਰਸਟ ਮਿਸਟੇਕ ਆਈ ਹੈਵ ਐਵਰ, ਮੇਕ ਹੈ, ਮੇਕ ਦੀ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਮੇਡ। ਅਗਲਾ ਸੱਤਵਾਂ ਲਾਸਟ, ਯੋਰ ਫਰੈਂਡ ਮੀਟਸ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਪੀਪਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਮ ਆਫ ਦੈਮ ਫੇਮਸ, ਕੁਝ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੇਮਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਯੂ ਆਸਕ ਯੋਰ ਫਰੈਂਡ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰੈਂਡ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ, ਫੇਮਸ ਪਰਸਨ ਮੀਟ, ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫੇਮਸ ਪਰਸਨ ਮੀਟ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਮਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਹੂਜ਼, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੁਪਰਲੇਟਿਵ। ਫੇਮਸ ਦਾ ਹੂ, ਮੋਸਟ ਫੇਮਸ, ਕਿਉਂਕਿ EST ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ, ਦ ਮੋਸਟ ਫੇਮਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦ ਮੋਸਟ ਫੇਮਸ, ਨਾउन ਕੀ ਹੈ, ਪਰਸਨ, ਦ ਮੋਸਟ ਫੇਮਸ ਪਰਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ हैव एवर, उस तो बाद met, थर्ड फॉर्म आएगी met, और इंटैरोगेटिव है, क्वेश्चन मार्क है, तो आप क्वेश्चन मार्क लगावांगे। सो मैनू लगता जिन्हें भी आप 3 एक्सरसाइज कीतियां सब तो आसान मैनू यही लगी। बस ये याद रखो स्ट्रक्चर इस दे मुताबिक ही सारे बनाते जाओ, बिल्कुल ईजी है। सो ये सी अपनी यूनिट नंबर 108। आई होप कि पूरी जी यूनिट है तीनों एक्सरसाइज तुहाडे चंगी तरह समझ आ गई होणगियां। सो जेकर वीडियो चंगी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर तो कमेंट जरूर करो, और जेकर तुसीं चैनल पर नवे हो तो चैनल को सबसक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। सो मिलते हैं अगली वीडियो लैके, उदों तक दिओ इजाजत। थैंक यू सो मच।